Ignited Minds Tutorials has recently released a series of educational videos focusing on motion in a plane, specifically catering to the preparation for IIT/NET/CET exams in physics. These videos serve as knowledge explanations, covering important topics and addressing previous year questions. Motion in a plane is a fundamental concept in physics, and understanding it thoroughly is crucial for students aiming for success in these competitive exams. The comprehensive videos provided by Ignited Minds Tutorials aim to simplify and clarify this topic, thereby aiding students in their exam preparations. The tutorials cover various aspects of motion in a plane, including projectile motion, circular motion, and relative motion. The explanations are accompanied by solved examples, offering students valuable insights into the application of these concepts in problem solving. By providing access to these knowledgeable videos, Ignited Minds Tutorials empower students with a strong foundation in physics. They enable students to grasp complex concepts with ease, boost their confidence, and enhance their problem-solving skills. Whether it's understanding the trajectory of a projectile or analyzing the centripetal force and circular motion, these videos offer a guided learning experience for all aspiring students, with the PYQs, previous year questions, included. Students can practice and familiarize themselves with the exam pattern and types of questions asked. Ignited Minds Tutorials' commitment to helping students excel in their physics exams is evident through these informative videos. They are a valuable resource for anyone preparing for IIT/NET/CET exams, providing the necessary knowledge and guidance to achieve success. Okay, people, let's start with physics. यहाँ पे हमने फिजिक्स में अरे यार one second now, just 1 minute people. Okay, let's start with physics people. हम मोशन इन अ प्लेन में हम देखो वेक्टर्स से भी डील करेंगे. हमने मोशन इन वन डायमेंशन से डील किया है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, हो गया है यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे पीवाईक्यूज, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया है आपका, ठीक है. अभी आपका मोशन इन अ प्लेन है तो ऑब्वियसली वेक्टर्स आएंगे इसमें, ठीक है. ओके, आपका देखो यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं विच आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है. तो आपका ए बेसिकली एक वेक्टर है विच इज 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, और बी एक वेक्टर है विच इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप, ठीक है. तेरे वैल्यू ऑफ c कितना हो जाएगा? माइनस कैसे? नहीं चाची, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा. हाँ, तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो देखो यहाँ पे a इंटू बी, ये आपका क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी a मॉड ऑफ b cos थीटा, है ना. cos थीटा मतलब cos 90 हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? जीरो. अभी जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप इंटू भाई साहब b है तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप, ठीक है. तो यहां पे सिर्फ i से i ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि i से j को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन तुम्हारा 90 डिग्री आ जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो 5 इंटू 2 कितना हो गया बोलो? 10. 7 इंटू 2 कितना हो गया बोलो? 14. एंड माइनस -3 कितना हो गया? प्लस 3c, ठीक है, 3c. क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल?
वेक्टर भाई साहब A1 आई कैप प्लस A2 सॉरी B1, अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे B1 J कैप प्लस C1 K कैप, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं A2 आई कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, तो इसका कितना आ जाएगा बोलो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, अगर आपका भाई साहब स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और ये हो गया भाई साहब आपका 3C, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। 10 प्लस 14 भाई साहब कितना हो गया, 10 प्लस 14 हो गया 24 प्लस 3C इज इक्वल टू 0, तो 3C इज इक्वल टू माइनस 24, C की वैल्यू हो गई भाई साहब -8, तो C की वैल्यू हो गई यहाँ पे कितनी, -8। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, समझम समझम समझम, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द एंगल थीटा बिटवीन देम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सी, ये तो भाई साहब जानी हुई बात है भाई साहब, ठीक है। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ओके ओके ओके, A and B are vectors such that A plus B mod, ठीक है, is equal to A minus B mod में, ठीक है। Then the angle between them is, इसको कैसे करेंगे, A plus B, A minus B, एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा, अरे भाई साहब देखो यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ A प्लस बी, तो यहाँ पे A प्लस बी वेक्टर है और इसका मॉड दिस इज इक्वल टू A माइनस बी वेक्टर है, इसका मॉड, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो व्हाट डू वी गेट हम पीपलम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू वी हैव हियर, A प्लस बी इसका भाई साहब स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी इसका स्क्वायर, है कि नहीं। सो दिस विल बी हाउ मच, A प्लस बी का भाई साहब स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, A का स्क्वायर, मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B का, भाई साहब यहाँ पे A प्लस बी मतलब रिजल्टेंट हो गया ना, तो मॉड ऑफ B का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पे पूछा है भाई साहब, देन द एंगल बिटवीन देम, A और B के बीच में लेट्स से एंगल कितना है तुम्हारा, थीटा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा बोलो, अगेन मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B का भाई साहब स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos ऑफ थीटा, ठीक है। ये कैंसिल, ये और ये भाई साहब कैंसिल, इसको इधर ले लो, कितना हो जाएगा बोलो, 4 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तेरे 4 तो भाई साहब 0 हो नहीं सकता और मॉड ऑफ A भी 0 नहीं हो सकता, अगर वो नल वेक्टर है तो अलग बात है, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली बात है कि cos थीटा ही 0 होगा, ठीक है। इस पूरे में cos थीटा ही 0 होने का पॉसिबिलिटी है, और ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90, ठीक है। सो A and B are vectors, so the angle between them is how much, the vectors, the angle between the vectors is 90 degrees. Clear? Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. When two vectors A and B of magnitude A and B are added, the magnitude of the resultant vector is always equal to A plus B, less than A plus B, greater than A plus B, not greater than A plus B. क्या हो जाएगा बोलो, देखो यहाँ पे टू वेक्टर्स A and B, तो आपका वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, A है, और वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, B है, ठीक है। आर एडेड, तो आपका भाई साहब मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस B, ये कितना हो जाएगा, व्हेन टू वेक्टर्स A and B ऑफ मैग्नीट्यूड, देन द वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, cos ऑफ थीटा, है कि नहीं। ए बी का मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, देखो यहाँ पे भाई साहब तुम बताओ, इधर ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया ना, मैग्नीट्यूड मतलब ये है ना, मैग्नीट्यूड मतलब ये आपका रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट ये होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, मतलब है क्या, देखो A प्लस B का
ए प्लस बी का जो मॉड है, मतलब रिजल्टेंट का मॉड है जो, वो कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये कितना है ए स्क्वायर, ये कितना है बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका यहां पे क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज। ठीक है, अभी भाई साहब देखो इधर, अगर इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑलवेज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन ए प्लस बी। मैक्सिमम वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, समझ में आता है। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 होता है, तो समझ लो भाई साहब अगर यहां पे 0 हुआ, कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 हुई तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, मतलब यहां पे a प्लस बी क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, ठीक है, इस तो ये हो गया आपका भाई साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, so that will be how much, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर, that will be how much, a प्लस बी। तो इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा a प्लस बी, मतलब इससे ज्यादा और वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन a प्लस बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड a एंड b आर एडेड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज नॉट ग्रेटर देन a प्लस बी, ये a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी टू वेक्टर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन a प्लस बी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर, क्लियर है भाई साहब, ओके। एक भाई साहब है यूनिट वेक्टर और उसका रिप्रेजेंटेशन ये दिया हुआ है, बहुत आसान सवाल है, चलिए भाई साहब इसको कीजिए। द वैल्यू ऑफ सी इज हाउ मच, जल्दी जल्दी जल्दी, डन पीपल, ओके। यूनिट वेक्टर है, देखो यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो मतलब अगर यूनिट वेक्टर का मॉड वैल्यू कितना होगा, मॉड वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा ना भाई साहब। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 0.5 मॉड वैल्यू मतलब क्या है, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम अंडर रूट करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 1। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 0.5, दैट इज 0.25 प्लस 0.64 प्लस c का स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, चलिए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, ओके, इधर कितना हो गया बोलो, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8, 0.89 प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो c का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.89, दैट विल बी हाउ मच 0.11, c का स्क्वायर हो गया 0.11, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 0.11। भाई आपका समझ में आ रहा है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा कि भाई साहब आपका मॉड वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, तो मॉड वैल्यू अगर 1 है, मॉड वैल्यू क्या होगा भाई साहब ax प्लस by प्लस cz, इसको आप ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, देखो इसको ऐसे समझो कि कोई वेक्टर है समझ लो, ठीक है, ये लेट्स से एक वेक्टर है और ये है तुम्हारा कोई भी एक्सिस है, तो इसका जो एंगल होता है, ठीक है, लेट्स से ये एंगल है विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो लेट्स से ये कोई वेक्टर है, वेक्टर a, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा ax, लेट्स से। ठीक है, ये ax कितना होगा भाई साहब, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ax की वैल्यू भाई साहब ये होगी, अगर हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो हो जाएगा ax, और ये ax मतलब कितना हो जाएगा
दिस विल बी हाउ मच, ये आई प्लस जे है तो ये वाला कितना हो जाएगा ए एक्स, यहाँ पे दिस ए एक्स विल बी इक्वल टू आई, दिस ए एक्स विल बी इक्वल टू आई कैप। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे ए, ठीक है, वेक्टर ए कॉस थीटा, वेक्टर ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ए एक्स वेक्टर ए कॉस थीटा, ये आपका मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। ए एक्स की वैल्यू समझ में आ रहा है? ये इसका इसमें रिप्रेजेंटेशन, ओके देखो समझो इस चीज को। ए एक्स में यूनिट वेक्टर जो इसका वेक्टर है, देखो यहाँ पे ए एक्स में कितना यूनिट वेक्टर आ रहा है भाई साहब? आई कैप आ रहा है, ठीक है। ये वेक्टर ए है भाई, हम लिखते हैं ना, देखो अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, अगर कोई वेक्टर है ऐसा, ठीक है, और किसी भी लाइन पे हम इसको कर रहे हैं, तो समझ लो ये वेक्टर ए है, ये थीटा है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा होता है कि नहीं? ठीक है, तेरे तो इसका भी कितना हो जाएगा? ए, ठीक है, ए कॉस थीटा हो जाएगा भाई साहब, ए कॉस थीटा इज, और यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 है भाई साहब, यहाँ पे 1 आई है, 1 जे है, ठीक है नहीं? तो ए मॉड कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू ए एक्स, और ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1, ठीक है। ए कितना हो गया बोलो? ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे बोलो ना बोलो, यहाँ पे आई का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपका भाई साहब cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? cos थीटा का वैल्यू हो गया 1/√2, और ये कब होता है भाई साहब? जब थीटा की वैल्यू हो 45। क्लियर है? ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 45। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज गिवन बाय, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब? हाँ, ओके तो आपका देखो, अगर हम जनरल फॉर्मूला लेते हैं, क्या है? वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, यही होता है ना भाई साहब? ठीक है, यही होता है, समझ लो भाई साहब। ये हो गया आपका वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और ये हो गया भाई साहब आपका वेक्टर बी। क्लियरम पीपलम? क्लियरम? आर वी क्लियरम? तो यहां पे भाई साहब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ए इंटू बी बोलो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। और बी भाई साहब कितना है यहाँ पे? 7 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन ए इंटू बी, ए वेक्टर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? √6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। यहां पे बी का कितना हो जाएगा भाई साहब? 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? यहां पे कितना हो गया बोलो? 6 7 42, ठीक है। अभी आई क्या है? कुछ नहीं रहेगा, है ना। आई कॉस 0, आई इंटू आई मतलब हो गया आपका 1, यूनिट वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर, और कॉस 0, तो ये 1 हो जाएगा। 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24, -3 इंटू 4 -12 अपॉन भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो? 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 36, 36 प्लस 9 दैट इज √45, √45। और यहाँ पे कितना हो गया? √45 है ना, 6 नहीं 36 प्लस 36, क्या कर रहा हूँ भाई साहब? 36 प्लस 36 हो गया 72, 72 प्लस 9 दैट इज 81, 81 है ना, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितना आया भाई साहब? 49, 49 प्लस 6, 49 प्लस 32, 16 और 16 32, 11 81, ठीक है। 81 आ गया इसका। तो यहाँ पे आ गया भाई साहब कितना? 2 प्लस 4 6, 6 और 4 प्लस 2 6, 66 माइनस 12 दैट विल बी 4
और ये हो गया आपका 54 आ रहा है, 54/81 आ जाएगा। अरे बाबा ये क्या आ गया भाई साहब, ओके कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पे अगर हम करें इसको 80 नहीं 9 6 ज़ा 54, 9 9 ज़ा 81, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है भाई साहब 2/3। तो आइडियली थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हमको कॉस इनवर्स का इतना वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, कहीं पे भी देखो नहीं दिख रहा है इतना, तो साइन में करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पे यही ट्विस्ट है भाई साहब सवाल में। यहाँ पे हो गया आपका कॉस थीटा का वैल्यू 2/3 है, तो यूज करो आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप करो भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4/9 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस 4/9 दैट्स गोइंग टू बी 5/9 है जी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5/9, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5/3। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ √5/3। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको धीरज धरना है, क्योंकि अगर आपने भाई साहब यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 है नहीं भाई साहब, पता नहीं मैंने कोई सवाल में गलत किया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कॉस में आंसर नहीं है, लेकिन साथ ही साथ साइन में भी आंसर दिया हुआ है, तो एक्सप्लोर कीजिए ऑप्शन को, आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई साहब थीटा इज इक्वल टू, आपका डायरेक्ट आंसर कॉस थीटा में आया था, आपका डायरेक्ट आंसर ये आया था, लेकिन आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है साइन की वैल्यू में। सो यू हैव टू एक्सप्लोर दैट ऑप्शन एंड फाइंड इट आउट। क्लियर है? ओके, चलो भाई साहब इसका करना है, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए दैट इज ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आई माइनस जे। तो मान लो देखो ये वाला वेक्टर है, ठीक है, ये वाला वेक्टर है आपका ए दैट इज कितना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी है कोई, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी कितना है आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है, देखो पहले तो ये देख लो कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी ये कितना हो जाएगा, बोलो ए बी cos ऑफ थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, मतलब क्या हो जाएगा, देखो ए cos थीटा है ना, ये वाला यही तो है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। समझ में आ रहा है भाई साहब, दो वेक्टर्स हैं देखो, अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर मैं बोलूं ए का कंपोनेंट बी में तो कितना होगा ए cos थीटा, और बी का कंपोनेंट अगर थीटा है दोनों के बीच में एंगल, बी का कितना हो जाएगा बी cos थीटा का, बी का कंपोनेंट ए में ये हो जाएगा। अभी ए बी cos थीटा है, तो ए cos थीटा क्या होगा कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, दिस ये जो आपको भाई साहब दिख रहा है दिस थिंग ए cos थीटा, दिस विल बी व्हाट कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, क्लियर है, तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी भाई साहब ये क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका ए इंटू बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। समझ में आ रहा है, ये कर लो भाई साहब इसको, ए इंटू बी करो, कितना आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, बी के साथ, दैट इज आई कैप माइनस जे कैप अपॉन बी का मॉड मतलब कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, क्या हो गया, सब लोग मुझे देख रहे हैं क्या हो गया, ए एक्स इंटू आई कैप, तो ये हो गया भाई साहब आपका ए एक्स, ए वाई इंटू, तो ये हो गया माइनस ए वाई, भाई इसका तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया आपका अपॉन √2। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट, आए क्या भाई साहब ए एक्स ये। ठीक है, सी वुड बी द करेक्टो ऑप्शन। क्लियरम पीपलम,
बहुत बढ़िया भाई साहब। फॉर वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। ये तो बहुत भाई साहब, ये एकदम ये सवाल है, क्या कहते हैं, लिखित सवाल भी नहीं है, मौखिक सवाल है, बताइए। हाँ नहीं, बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, गलत है। क्यों बताओ? यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट है, तुम्हारा आंसर वेक्टर में नहीं है, तो तुम्हारा आंसर कंप्लीट अगर होगा ना तो दिस विल बी विद द यूनिट वेक्टर एंड दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये है, ठीक है। ये होगा क्या बोलो? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि a इंटू बी, जब आप a इंटू बी करते हैं तो आप कैसे जा रहे हैं, समझ लो ये a है और ये b है, मतलब आप जा रहे हैं भाई साहब ऐसे, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है इस डायरेक्शन में आएगा। b इंटू ए करेंगे तो कैसे जा रहे हैं, b इंटू ए ऐसे, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आपका अंदर की तरफ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हो, ये बताओ सही हो जाएगा? क्योंकि देखो a इंटू बी, ए इंटू बी मतलब ऐसे जा रहे हो, तो राइट हैंड रूल लगाओ यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे जा रहे हो तो मतलब आपका रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स एंड कमिंग आउटसाइड। b इंटू ए करोगे मतलब आप ऐसे जा रहे हो, तो ऐसे जा रहे हो तो ये रिजल्टेंट थंब इज दिस साइड, तो इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ। a इंटू बी और b इंटू ए दोनों का डायरेक्शन एब्सोल्युटली ऑपोजिट, तो ये वाला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। गिवन टू वेक्टर्स, ठीक है, द एंगल मेड बाय a प्लस बी विथ x एक्सिस कितना हो जाएगा? दो वेक्टर्स दिया हुआ है, एक वेक्टर हो गया भाई साहब आपका a, दैट इज हाउ मच, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप minus 3k cap, and then we have vector b which is how much, 4i cap minus 2j cap plus 6k cap. The angle made by a plus b, तो a plus b पहले कर लो भाई साहब, है ना, a plus b कर लो, यहाँ पे वेक्टर a प्लस वेक्टर b इतना कितना हो जाएगा भाई साहब, 3i कैप, यहाँ पे भाई साहब ये गया उड़ गया कैंसिल, हम यहाँ पे कितना हो गया प्लस 3k कैप, a प्लस b हो गया, ठीक है। इसका x एक्सिस पे क्या एंगल होगा, बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। तो a प्लस बी हो गया, लेट्स से ये a प्लस बी है ना, ये a प्लस बी हो गया, इसका भाई साहब x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है, कितना आ जाएगा बोलो, अरे बोलो ना भाई साहब, ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी का जो x कॉम्पोनेंट है, a प्लस बी का x कॉम्पोनेंट कितना है, 3 है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अरे भाई साहब अगर समझ लो ये कोई वेक्टर होता r, ठीक है, r cos थीटा इज इक्वल टू ये जो है, मतलब ये वाला पार्ट, x कॉम्पोनेंट कितना है यहाँ पे 3, तो ये हो गया भाई साहब 3, तो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3। a प्लस बी का वैल्यू कितना आया भाई साहब, तो अब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये मॉड में है देखो, ठीक है, ये मॉड में है, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी का भाई साहब मॉड वैल्यू, तो ये हो गया कितना 3 अपॉन a प्लस बी का वैल्यू कितना है भाई साहब, अगर हम इसको करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, सो दिस विल बी 3 अपॉन 9 प्लस 9 18, ठीक है, 3 प्लस 9 अपॉन 18, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 3, ये हो गया 9 इंटू 2, तो दैट विल बी हाउ मच 3 और 3 अंडर रूट 2, कैंसलम, ये आ गया 1 बाई अंडर रूट 2, तो आपका आया भाई साहब कॉस थीटा की वैल्यू आई 1 बाई अंडर रूट 2। तो आइसोलेटेड बैठेगा कल से भाई साहब, ठीक है। आई ऑलवेज सी यू इधर ऑन अ डिस्टर्बिंग मोड, खुद ध्यान नहीं रहता है प्लस दूसरों को भी डिस्टर्ब करता रहता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की कौन से वैल्यू के लिए 1 बाई अंडर रूट होता है, दिस विल बी 45 डिग्री, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। सारे सवाल हो गए क्या भाई साहब, बहुत बढ़िया। मोशन इन अ प्लेन, ये एक में डाउट है ना, ठीक है, विल सी दिस।
ठीक है, दैट वुड बी इट फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे। एक क्लास और आपका होगा उधर।